মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা, পাকিস্তানে জাফর এক্সপ্রেস হাইজ্যাক করেছিল বালুচ লিবারেশন আর্মি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় পড়ে যায় গোটা পাকিস্তানে। সারা বিশ্ব বিএলএ বা বালুচ লিবারেশন আর্মির দাপট দেখেছিল। পাল্টা অ্যাকশনের নামে পাক সেনা, দুপক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষও হয়। সেই সময় পাকিস্তান দাবি করেছিল বালুচ লিবারেশন আর্মি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, যদিও পাকিস্তানের সেই দাবি তখন উড়িয়ে দেয় বালুচরা। আর এবার নিজেদের সেই দাবির সপক্ষে প্রায় 35 মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করলো বালুচ লিবারেশন আর্মি। সেই ভিডিও দেখলে রীতিমতো শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাবে। এমনকি তুরস্ক বা বাংলাদেশের মতো যারা পাকিস্তানকে মদদ দেয় বা পাকিস্তানকে বন্ধু ভাবে, তাদেরও হাঁটু কেঁপে যাবে। ভিডিওতে একদিকে যেমন বালুচ লিবারেশন আর্মি ট্রেনিং দেখানো হয়েছে, তেমনই ট্রেন হাইজ্যাকের বিভিন্ন মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। আপনাদের প্রথমে বিএলএর জারি করা সেই ভিডিওটা দেখাই, দেখুন এক ঝলক। দেখলেন তো কিভাবে গোটা ট্রেনটিকে হাইজ্যাক করেছিল বালুচ লিবারেশন আর্মি। লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন, এমনকি ট্রেনের ভিতরে ছবিও দেখা গিয়েছে ওই ভিডিওতে। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেখা গিয়েছে বালুচ লিবারেশন আর্মির সদস্যদের। ট্রেনের মধ্যে ঢুকে গোটা ট্রেনের দখল নিয়েছিল তারা। এবারে তাদের যে প্র্যাকটিস বা তাদের যে প্রশিক্ষণ, সেই প্রশিক্ষণেরও ছবি এই ভিডিওতে শেয়ার করেছে বিএলএ। ভিডিওটি ভালো করে দেখলে এটা বোঝা যাবে যে বিএলএ বা বালুচ লিবারেশন আর্মি কতটা ক্ষিপ্র ছিল, কতটা ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছিল। শোনা যায় যে সেই সময় মানে এই হাইজ্যাক করার পর, জাফর এক্সপ্রেস হাইজ্যাক করার পর পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে যখন তুমুল যুদ্ধ বেঁধেছিল বা তুমুল একটা ক্ল্যাশ বেঁধেছিল বিএলএর, সেই ক্ল্যাশে পাকিস্তানি সেনার অনেক জওয়ান মারা গিয়েছে, নিকেশ হয়েছে। আপনারা যে এরিয়াটায় দেখতে পাচ্ছেন বিএলএ জাফর এক্সপ্রেস ক্যাপচার করেছিল বা হাইজ্যাক করেছিল, এই এলাকাটি পাহাড়ে ঘেরা এবং চারিদিকে গুহা। এই এলাকা বিএলএর সদস্যরা খুব ভালোভাবে চেনে হাতের তালুর মতন। বলা যায় পাকিস্তানি সেনা ওই এলাকায় ঢুকতে ভয় পায়। বালুচ লিবারেশন আর্মির এক সদস্য সেই সময় হুঙ্কার দিয়েছিলেন, একদিকে পাকিস্তানকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন, অন্যদিকে চীনা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেও, এমনকি চাইনিজ প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর নাম ধরে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন। কি বলেছিলেন তিনি? চীনা এই বালুচ লিবারেশন আর্মির সদস্য চীন এবং পাকিস্তানকে হুঙ্কার দিয়ে শোনাবো। पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दी गया है, पाकिस्तान के अंदर बलूच कौम को, खासतौर पर बलूच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलूच को मावरा अदालत बाकायदा आए दिन टाचर सेल गोला और मकसूद दिए जा रहे हैं। दुनिया के अंदर बलूच की सच को दबा दिया जा रहा है कि बलूच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GHQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलूच पहुंच चुका है कि वो बलूच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी
फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलोच आज सच बोल ही नहीं सकता है। इस हद तक बलोच को पहुंचा दिया गया। क्यों? बलोच ना दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है, ना कि बलोच पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि बलोच को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ और बंदूक की ज़ोर से। क्योंकि बलोच आज ज़िंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से। आपके शहरों के अंदर, आपके गाँवों के अंदर ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहा है कि नशा क्रिस्टार के नाम से या मजहबी इंतहा पसंदी के नाम से बलोचों को दुनिया के अंदर बाकायदा बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे हैं कि नौआबादी निज़ाम एक बड़ा एक बीमारी है। क्योंकि नौआबादी निज़ाम से आप घुस गए तो वो आपको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ते हैं, क्योंकि लिटरेचर वो ज़रिया है कि आपको नफ्सियाती मरीज़ों से निकाल सकते हैं। क्योंकि तक हमारे आज पहाड़े स्टूडेंटों से भरे हुए हैं, आज हमारे पहाड़े डॉक्टरों से भरे हुए हैं। क्यों? उस हद तक हमारा पहुँचा गया। क्या? उस हद तक आज हमें पसमानदा किया गया है कि दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा है या इंसानी हुकूक़ है या UNO है, पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आप किसी जानवर की, किसी या परिंदे की नस्लकुशी रोक दिया जाता है। मगर बदकिस्मती है, दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सिर्फ और सिर्फ। बलोच की नस्लकुशी की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक की ज़ोर से आपकी नस्ल बच सकता है दुनिया के अंदर। एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्ज़ा है कि उसकी वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरमायादार एक बुलाक है। वो सरमायादार, वो उसको बलोच की कोई अहमियत ही नहीं, ना बलोचिस्तान की सरजमीन की अहमियत है। सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान को फैक्ट्री जोड़ किए गए हैं। और सिर्फ एक दौर था कि बलोचिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी की दौर नहीं था। आज बलोचिस्तान को जदीद मशीनरी से लूटा जा रहा है। क्योंकि आज बलोचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया, बलोचिस्तान के समंदर मच्छियों से खाली करके गए। बलोचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडेक के मालिक होते हुए भी आज वो भूखा सो रहा है। कि इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद, और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहते हैं, बलोच को सिर्फ और भेड़ बकरियाँ चराने वाले कहते हैं। कि आज हम उस स्टेट तक पहुँचे, ये मजीद ब्रिगेड जनरल उस्ताद असलम की कारवान की वजह से, कि उस हद तक आज हम दुनिया के अंदर नज़र आ रहे हैं। বালোচ বিদ্রোহীদের এই জোশ দেখে আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।